Good morning, everyone. 11th Commerce Economics. Now, chapter number 3 Demand. Exceptions to the law of demand. Exceptions to the law of demand means that when price of a good falls, its a demand contracts instead of expanding and vice versa. मतलब जब प्राइस गुड्स की फॉल्स होती है तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस होने की जगह एक्सपांडेशंस होता है, उल्टा कामकाज होता है. Does a price change create demand to change in opposite directions than that indicate in the law of demand? Some exceptions to the law of demand are stated below. मतलब कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल अपोज होता है. जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है व्हेन प्राइजेस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेज और एक्सपांडेड एंड व्हेन प्राइजेस राइज एट दैट टाइम डिमांड इज कॉन्ट्रैक्ट. सो ऐसा वहाँ पर होता नहीं है. पहला आता है प्रेस्टिजियस गुड्स. Certain goods which are priced very high are generally consumed. Why? Very rich peoples like expensive jewelry, expensive cars, expensive mobile phone, etc. are exceptions to the law of demand. ये कुछ चीज़ें जो होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं वो लॉ ऑफ डिमांड के exceptions हैं. So, such goods are used by rich as a status symbols and hence even when there is a rise in their price, the demand expanded instead of contracting, and if their price falls, the rich may contract this demands thinking, and that a fall in price means that goods demands and that goods demand is losing its prestige. मतलब प्रेस्टिजियस वाले कुछ गुड्स होते हैं जैसे कि गोल्ड है, डायमंड्स है, या कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं कि उसकी प्राइस जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ही ज़्यादा उसकी लोगों के अंदर वैल्यूएशन और उसकी प्रेस्टीज ज़्यादा होगी. तो जो रिच पीपल्स होते हैं वो क्या करता है कि जब इसकी प्राइस हाई होती है तो वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करता है. मीन्स डिमांड इज मोर. क्यों? क्योंकि उसमें प्रेस्टीज का वैल्यूएशन रहा होने के कारण उनकी मार्केट में प्रेस्टीज और वैल्यू कैसी होगी? ज़्यादा. सो व्हेनेवर द price is high, demand is high, and when price is false, demand is also false, क्योंकि उसकी प्रेस्टीज की जो वैल्यूशंस होती है वो डाउन हो जाती है. सेकेंड आता है एक्सट्रीमली लो प्राइस्ड गुड्स. Certain goods are extremely low priced goods and hence the entire consumption's expenditures on such goods from a very small proportions of a consumer's income, for example, pens, stapler, pins, etc. Even if their price rises, a consumer demand for these types of goods may not contract, and if their price falls, the consumer may not expand demand and he and she may not need more of such goods. कुछ ऐसे goods होते हैं जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा लो होती है बट लाइफ में उसकी उतनी इम्पोर्टेंस होती नहीं है. तो इनकी प्राइस अगर कम हो जाएगी तो डिमांड बढ़ती नहीं है और इनकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो इनकी डिमांड घटती भी नहीं है. सो इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड्स. थर्ड आता है गिवन गुड्स. When price of certain goods called inferior goods fall and the real income of a consumer rises, she and he may reduce the consumptions of such a goods and substitute these by goods of a superior quality. These goods were named after Robert Giffen, who made such observations and explained this idea. Such goods are necessary goods and are purchased by the low income groups. For examples, a person with low income purchases jowars or a bajra. When a price of jowar or bajra falls very low, the real income of a consumer tends to increase and hence he and she will reduce consumptions of such a goods and will purchase more of it.
which is the superior goods. Another example in the vegetables, वनस्पति घी एंड प्योर घी. मतलब रेगुलर काम करने वाले कुछ लेबर्स या मजदूर होते हैं जो रूटीन में रोज़ इनकम अर्न करते हैं और रोज़ क्या करते हैं, खर्च करते हैं. तो यहाँ पे आपको बाजरा एंड बीट का जो होता है यानी कि ज्वार का और वीट का एग्जाम्पल दे करके रखा गया है कि जब उनको सैलरी कम मिलती है, मतलब पर डे की जो इनकी इनकम होती है अगर कम होती है तो वो बाजरा मतलब ज्वार को परचेज़ करते हैं. जब उनकी पर डे की इनकम बढ़ जाती है तो क्वालिटेटिव भी बढ़ा देते हैं और ज्वार के प्लेस पे किसको परचेज़ करते हैं, वीट को. लेकिन क्वांटिटी उतनी रहेगी, वो बढ़ सकता नहीं. और लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि एटलीस्ट 1 ईयर का पीरियड होना चाहिए डिमांड चेंज होने में, बट यहाँ पे हर रोज़ की डिमांड चेंज हो रही है. दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू प्राइस एंड गुड, बट हियर इज़ रिलेटेड टू ह्यूमन्स इनकम. उनकी इनकम बढ़ गई तो क्वालिटी वाला परचेज कर लिया, उनकी इनकम घट गई तो लो प्राइस वाला विदाउट क्वालिटी वाला वो परचेज करते हैं. नेक्स्ट आता है स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ द पीपल्स. Certain times people gets very accustomed and used to certain goods. As a result, if there is some rise in the price of such a goods, an individual's demand may not decreases. For example, a particular brand of toothpaste, shoes, etc. कुछ पर्सन्स ऐसे भी होते हैं कि प्राइस कम हो जाए या बढ़ जाए, बट स्पेशल प्रेफरेंस जो होता है कि मुझे इसी ब्रांड का गुड्स चाहिए, तो उनका टेस्ट के साथ साथ उनकी डिमांड कभी चेंज होती ही नहीं है. चाहे प्राइस घटे या बढ़े, उनकी डिमांड वही की वही रहेगी. सो यहाँ पर स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ द पीपल्स रिलेटेड टू ब्रांड गुड्स. नेक्स्ट आता है एक्सपांशंस एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डिमांड्स. व्हेन अदर डिटर्मिनेंट्स आर अज्यूम टू रिमेन कांस्टेंट एंड प्राइसेस वेराइड. मतलब अदर जो फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उसमें कोई चेंज आता नहीं, सिर्फ प्राइस चेंज होती है. देयर इज़ अ एक्सपांसन एंड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डिमांड. व्हेन प्राइस फॉल्स कीपिंग अदर डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट, देयर इज़ एन एक्सपांशन इन डिमांड अकॉर्डिंगली. व्हेन प्राइस राइज व्हेन अदर डिटर्मिनेंट्स डू नॉट चेंज, देन देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डिमांड. इन शॉर्ट, प्राइस घटती बढ़ती है उससे रिलेटेड है. चलिए देखते हैं विद द एग्जाम्पल. देखिए यहाँ पे आपको गुड्स की प्राइस दे करके रखी है कि प्राइस जब 5 रुपीज़ की थी तो डिमांड कितनी हो गई, 1 की. प्राइस 4 की हुई तो डिमांड कितने की हो गई, 2 की. प्राइस 3 की हुई तो डिमांड भी 3 की हो गई. प्राइस 2 रुपीज़ हो गई तो यहाँ पर डिमांड होगी 4 की, और प्राइस 1 रुपीज़ हो गई तो डिमांड कितनी हो गई, 5 की. सो व्हाट, मतलब यहाँ पे आपको बताया गया कि 5 to 3 रुपीज़ और 3 रुपीज़ to 1 रुपीज़ के बीच में. तो जहाँ पे प्राइस 5 से लेकर के 3 के बीच में आप देखेंगे आपके इस ग्राफ के अंदर, तो वहाँ पे डिमांड में कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, मतलब धीरे धीरे घट रही है, कम है. 3 पर 3, 4 पर 2 और 5 पर 1. जबकि 3 to 1 की प्राइस है, वहाँ पे हमें एक्सपांशन देखने को मिलता है. जैसे 3 की प्राइस है तो डिमांड 3 की, 2 की प्राइस हुई तो 4 की, और 1 की प्राइस हुई तो 5 की. तो इस तरीके से पता चलता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स आता है, और जैसे जैसे प्राइस घटती है वैसे वैसे डिमांड के बीच में एक्सपांडेशन देखने को मिलता है. इन शॉर्ट, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्राइस घट जाएगी तो डिमांड में एक्सपांशन देखने को मिलेगा, मतलब वो बढ़ जाएगी. दूसरा पॉइंट आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड. यहाँ पे एक्सपांशंस कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहा है, बट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है. व्हेन वन फैक्टर्स और सम फैक्टर्स अदर देन प्राइस चेंज इन फेवर ऑफ डिमांड ऑफ अ गुड, then there is an increase in demands which is caused by rightward shift of the demand curve. If these factors change against of the demand, that at the same price demand decreases as the entire demand curve shift to the left side,
and hence increase and decrease in the demand in caused by the determinants other than price. अगर प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स में चेंज होता है, प्राइस को छोड़ करके दूसरे फैक्टर्स में चेंज होता है, तो यहाँ पर डिमांड क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है, इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है, मतलब ज़्यादा लेवल पे नहीं होगी, बहुत कम लेवल पे होगी. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इंक्रीज एंड डिक्रीज. चलिए देखते हैं. सो प्राइस 3 रुपीज़ की आपको देखे रखी है, यहाँ पे बोल रहा है प्राइस 3 थी तो डिमांड 1 की है, प्राइस 3 है तो डिमांड 2, प्राइस 3 है तो डिमांड 3, प्राइस 3 है तो डिमांड 4 और प्राइस 3 है तो डिमांड 5. यानी 1 to 3 के बीच में डिमांड है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी 3 से 2, 2 से 1. जबकि 3 से 4, 4 से 5 हो रहा है, तो मतलब डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. सो इस तरीके से यहाँ से आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्राइस सेम होती है और डिमांड चेंज होती है अदर फैक्टर चेंज होने के कारण. सो दिस पॉइंट्स इज नॉन एज इंक्रीज और डिक्रीज इन द डिमांड. जब प्राइस सेम रहेगी, प्राइस में कोई चेंज होगा नहीं, और जब प्राइस भी साथ साथ में चेंज होती है तो डिमांड के अंदर आने वाले चेंजेस को हम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपांशंस के नाम से जानते हैं. तो आज के लेक्चर में इतना ही, इतना आपको अच्छे से करना है. थैंक यू.